Hello everyone. So today we are here with a very special person, and that is Dr. Icha. She is an anesthetist by profession, and we've had so many questions regarding anesthesia, and so many people have actually requested to come live with the anesthesiologist. So she's been my anesthesiologist for the last 2.5 years. 2.5 years. And she's been there for most of my cases, and she's an absolutely amazing anesthesiologist. My patients love her. And so today's live session is about the fear of anesthesia that people have. Usually it is more so because in aesthetic surgery what happens is people are opting for a procedure that is elective, it is by choice, and they are always thinking that what are the risks involving anesthesia and how we are going to go about the anesthesia part, whether it is how risky it is. So all those questions we can shoot to Dr. Icha today. And all right, and keep sending me your questions. I'll keep asking Dr. Icha to answer them. Yes. And I can start by saying that in my experience of last 2.5 years, most of the patients come up with two queries. First and foremost, they ask whether they are going to get awake during the surgery, and second is just the opposite, that whether after the surgery they are going to wake up or not. Yeah, right. So I think we can just volume up a little bit because Or you want to move a little forward? I can move closer. We can change seats. Yeah, that's perfectly fine. So, as far as waking up after surgery is concerned, the risk of mortality or mortal complication under anesthesia in new age is very, very, very negligible. It is almost 0.0001%, which is 1 in 1 lakh, which is twice the amount of you landing up, getting killed when you move out every time out of your house, even for a walk. So it is just to tell you that it is actually not there. If you are in optimum health, you are properly investigated, and you are being operated by a qualified doctor team, which is a qualified anesthetist and a qualified surgeon, you don't need to worry about in this new age of medicine. So that's what, for people who are not very conversant with English, we'll try to just keep a little bit of mix of. Yes. So जो डॉक्टर इच्छा कह रही है वो ये कह रही है कि in this day and age, and what before I say all this, I would like to say that the amount of progress that we've made in surgery is largely due to the anesthesia that we are able to enjoy in the modern medicine. Because earlier, when there was no anesthetist, no anesthetic drugs, how difficult it is to perform a surgery. But then that era also existed. And today, in this day and age, we've got an anesthesia for literally every procedure. Absolutely. Even OPD procedures that we are doing, there's anesthesia available for that also. So why bear the pain when we have absolutely such an advancement in anesthesia? और बिल्कुल रिस्क जो है, देखिए, कभी भी अगर हम ये बोले कि रिस्क 0 हो जाए, वो नहीं हो सकता. ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, किसी भी चीज में पॉसिबल नहीं है. अगर आप घर में भी रह रहे हैं तो अर्थक्वेक आने का रिस्क है, बिल्डिंग गिरने का रिस्क है, आप रोड पे चल रहे हैं, एक्सीडेंट होने का रिस्क है. सो दैट रिस्क cannot be made 0. However careful you are, even if you drive your vehicle very carefully, there is a very minimal chance that somebody else may come and absolutely bump your car. So वो तो हो ही सकता है. But what I'm saying is that इतना कुछ ऐसा मेजर रिस्क नहीं है. अगर होता तो इतने प्रोसीजर हो ही नहीं रहे. एंड कॉस्मेटिक सर्जरी या प्लान या इलेक्टिव प्रोसीजर में वो रिस्क और भी बहुत 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 कम होता है. आप किसी इमरजेंसी सर्जरी के लिए जा रहे हैं जहां वो ऑप्टिमाइज नहीं है आप, या वो इलेक्टिव प्रोसीजर नहीं है, उसमें भी इस एज में जान का खतरा तो हार्डली कभी होगा. लेकिन किसी कॉम्प्लिकेशन या प्रोलॉन्ग स्टे का भी इलेक्टिव प्रोसीजर में इफ़ यू आर प्रॉपर्ली इवैल्यूएटेड कोई खतरा नहीं है. एनेस्थीसिया एज अ ब्रांच इसीलिए आई गई है ताकि आपका सर्जिकल एक्सपीरियंस, सर्जिकल प्रोसीजर सेफ हो, स्मूथ हो और रिकवरी अनइवेंटफुल हो. So we have a question where somebody is asking, ma'am, do I need health checkup for the breast reduction surgery?
सी हेल्थ चेकअप की कोई ज़रूरत नहीं है एज सच, बट जब आप सर्जरी से पहले आते हैं आपको कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस बताई जाएंगी, वो ज़रूरी है। आपकी एज, आपकी डिजीज़ प्रोफाइल, और आपने अपनी सर्जरी के बारे में बता दिया है, तो कुछ बेसिक्स इन्वेस्टिगेशंस इसके हिसाब से हम जस्ट बिफोर सर्जरी कराते हैं। और आपका एनेस्थीसियोलॉजिस्ट आपको सर्जरी से पहले एक बार ही मिलता है जस्ट टू असेस यू। एंड इससे ज़्यादा फॉर अ सरफेस सर्जरी, अगेन आई विल से कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स जो हैं वो लार्जली सरफेस सर्जरीज हैं। हम लोग उसमें इंटरनल ऑर्गन्स के साथ नहीं डील कर रहे हैं इतना, सो दे आर वेरी वेरी सेफ प्रोसीजर्स। हाँ, आपको कुछ इन्वेस्टिगेशन करानी पड़ेगी, आपका एनेस्थीसियोलॉजिस्ट आपको एग्जामिन करेगा, सर्जरी से पहले आपको मिलना पड़ेगा, और कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं फास्टिंग की, सर्जरी से पहले कुछ खाना नहीं है, कितनी देर पहले खाना नहीं है, आप किसी दवाइयों पे हैं तो वो कब लेनी है, कैसे लेनी है, कुछ ऑल्टरेशन है, कुछ एक्सरसाइजेस हैं, ये सब हम लोग बताते हैं। पर फुल बॉडी चेकअप विच इंक्लूड्स ऑल एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशंस, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको। I think here we can also, tell our viewers about the types of anesthesia that we have. हाँ. तो वो जैसे अलग अलग कैटेगरी में आप अगर explain करें तो I think they can be more clear. I'll just take a break for 5 minutes. Sure. Thank you. So anesthesia is basically of 3 types. 3 तरीके का anesthesia होता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो लोकल एनेस्थीसिया होता है वो छोटी सर्जरीज या लोकलाइज सर्जरीज या किसी एक हिस्से की सर्जरी के लिए यूज़ होता है। मोस्ट कॉमनली अगर हम देखें, हम डेंटल प्रोसीजर्स के लिए जाते हैं तो डेंटिस्ट हमें एक इंजेक्शन देता है जिससे हमारा दांत सुन्न हो जाता है, हम अवेक रहते हैं, हमें सब कुछ पता चलता है, पर हमें दांत में दर्द नहीं होता। इसको लोकल एनेस्थीसिया कहते हैं। जो सब लोगों के लिए एनेस्थीसिया होता है या एनेस्थीसिया इक्विवेलेंट होता है वो है जनरल एनेस्थीसिया। नाउ व्हाट इज जनरल एनेस्थीसिया? जनरल एनेस्थीसिया इज कि आप सर्जरी के दौरान पूरे बेहोश हैं, आपको कोई कॉन्शियसनेस, मेमोरी, पेन ड्यूरिंग द प्रोसीजर नहीं है, कोई अवेयरनेस भी नहीं है। ये सर्जरी ख़त्म होने के बाद आप होश में आ जाते हैं, and during the surgery in general anesthesia you're completely unconscious, it is like lost time। आपको उस समय के बारे में जब आप उठेंगे कुछ याद नहीं होगा, आपकी लास्ट मेमोरी होगी ओटी में आने के बारे में। एंड एक एनेस्थीसिया होता है जो इन दोनों के बीच में होता है, एंड इट इज़ कन्फ्यूज्ड अ लॉट ऑफ टाइम विद लोकल एनेस्थीसिया, जिसको हम कहते हैं रीजनल एनेस्थीसिया। ना रीजनल एनेस्थीसिया भी कई प्रकार का होता है, उसमें बॉडी के एक बड़े हिस्से को सुन किया जाता है, एंड उसके हिसाब से जैसे आप सिजेरियन सेक्शन के लिए जाते हैं, लोअर लिम्ब सर्जरी या कमर से नीचे की सर्जरीज में हम एक बैक में इंजेक्शन देते हैं जिससे नीचे का हिस्सा सुन्न हो जाता है। इस दौरान आप होश में रहेंगे, आप अपने सर्जन से बात कर सकते हैं, लेकिन आपको कमर के नीचे के हिस्से में कोई दर्द नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल रीजनल एनेस्थीसिया का है, हम ब्लॉक्स देते हैं, यहाँ पे एक नर्व जाती है, नर्व का प्लेक्सस जाता है या एक नर्व का गुच्छा जाता है, जिसे हम एक लोकल एनेस्थेटिक ड्रग से ब्लॉक कर देते हैं, एंड उससे आपका पूरा हाथ सुन्न हो जाता है, एंड आपके हाथ की सर्जरी में अगर कोई प्रकार की सर्जरी है वो हो सकती है, और आपको इस दौरान कोई दर्द नहीं होता, पर आप होश में रहते हैं। कई लोग रीजनल एनेस्थीसिया के साथ ऐसा चाहते हैं कि उनको थोड़ी नींद की दवा भी दी जाए, इसे हम सिडेशन कहते हैं, कि जब आपको रीजनल एनेस्थीसिया दिया गया है आपको थोड़ी बहुत नींद की दवाई दी जाए जिससे आपको सर्जरी के समय का पता ना चले। अगर हम वो ना भी दें तो भी आपको दर्द वगैरह नहीं होगा। सो आई थिंक वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम तोशिका that she had sudden weight gain and she has thyroid and PCOD and can I undergo? Yes, of course. देखिए थायराइड आजकल what should I say, so many patients, 20 to 30% of the patients that we have with weight gain are suffering from thyroid। और थायराइड में सिर्फ इम्पॉर्टेंट ये है कि सर्जरी से पहले आपका TSH या थायराइड प्रोफाइल विद इन नॉर्मल लिमिट्स हो। तो अगर आप रेगुलर मेडिकेशन पे हैं और आपका थायराइड ऑलमोस्ट नॉर्मल है तो येस, लाइक आई सेड, यही चीज़ें आपकी हिस्ट्री लेके हम लोग देखते हैं, एंड उसके हिसाब से हम लोग आपको इन्वेस्टिगेशन बताते हैं, और वो इन्वेस्टिगेशन अगर नॉर्मल लिमिट में हो तो वी कैन गो अहेड विद सर्जरी। अगर आपका थायराइड प्रोफाइल नॉर्मल नहीं भी है तो भी वो कितना ऊपर है या कितना नीचे है उसके हिसाब से हम सर्जरी प्लान कर सकते हैं। आपकी दवाई की डोज इंक्रीज या डिक्रीज की जा सकती है,
एंड उसके हिसाब से हम लोग बेसिक इन्वेस्टिगेशन जैसे ECG वगैरह करके असेस कर सकते हैं, आपको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं सर्जरी से पहले। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप जितनी अच्छी हेल्थ में हो सकते हैं सर्जरी से पहले, आप उस हेल्थ में हो। लाइक इफ़ आई कंपेयर माई सेल्फ विद एन एथलीट हु रन्स अ मैराथन, मे बी मेरी लंग कैपेसिटी उसकी कैपेसिटी जितनी कभी भी ना हो सके, बट मैं एग्जामिनेशन में अगर मुझे कोई वीज है या अस्थमा है, मुझे वो नहीं होना चाहिए। आई शुड बी इन माई बेस्ट हेल्थ बिफोर अंडरगोइंग फॉर surgery. Yes, now let us see if we have any other questions. And like I said, so there's a question: how is plastic surgery for a female in a tier 2 city like Patna? See, if you are asking for, see, like I said earlier, most of the plastic surgery procedures are surface surgeries. जैसे अगर हम लाइपोसक्शन करते हैं, हम स्किन ग्राफ्टिंग करते हैं, हम ब्रेस्ट रिडक्शंस करते हैं, ब्रेस्ट इम्प्लांट्स करते हैं, इसमें कोई सर्जरी मेनली ऐसी नहीं है जिसमें इंटरनल ऑर्गन्स के साथ हम बहुत मैनिपुलेशन करें। सो ऐसी सर्जरीज आर कैटेगराइज्ड एज रिलेटिवली सेफर सर्जरीज। अगर आप एक अच्छे सेटअप में हैं जहाँ आपके क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, and so I'm sure you can go ahead in Patna. It should not be a problem at all, but you should ask all your doubts. Again मैं ये कहना चाहूँगी, सर्जरी होने से पहले बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके मन में जो भी डाउट्स हों, जो भी क्वेरीज हों, या आप कुछ भी पूछना चाहें, वो आप अपने डॉक्टर, मे बी सर्जन, मे बी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट से ज़रूर पूछें, बिकॉज एन इन्फॉर्म्ड पेशेंट इज़ ऑलवेज अ मोर हैप्पियर पेशेंट। अगर आपके दिमाग में ऐसा हो कि मुझे सर्जरी के बाद बिल्कुल दर्द नहीं होगा, एंड सर्जरी के बाद कुछ हद तक का कुछ सर्जरीज में बहुत दर्द होता है और कुछ सर्जरीज में इतना दर्द नहीं होता, तो जब आप वो दर्द को एंटिसिपेट करते हैं तो आपके अंदर वो अलार्म बेल्स नहीं बजते कि ओ मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो रहा, तो वो एंजाइटी लेवल कम हो जाता है इफ़ यू आर एन इन्फॉर्म्ड पेशेंट। तो अपने डॉक्टर या एनेस्थीसियोलॉजिस्ट से ज़रूर बात करें। लेट मी सी इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस। So there is a question where somebody is asking, can I travel a long distance just after surgery? Now see, again ये depend करेगा आप कैसी सर्जरी या क्या सर्जरी करा रहे हैं। ठीक है, जैसे ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरीज में हम अगले दिन डिस्चार्ज कर देते हैं और हम फॉलोअप के लिए बुलाते हैं फर्स्ट या सेकेंड, बट उसके बाद यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड सॉर्ट ऑफ गो बैक टू योर होम टाउन एंड यू कैन ट्रैवल। सेकेंडली, अगर आपकी कोई बहुत मेजर जैसे बॉडी स्कल्प या फुल बॉडी लाइपोसक्शन हुई है, तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस का एयर ट्रैवल में अगर लॉन्ग एयर ट्रैवल है तो रिस्क रहता है। तो दैट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ सर्जरी यू हैव अंडरगॉन and the kind of procedure you have undergone and what is your risk profile like. By and large, traveling after you have recovered, जितना भी आपको हॉस्पिटल में स्टे बताया गया है, should not be a problem. And we have a lot of patients who come from out of town and we operate. Yeah. And so we have many more people joining. And please let your questions keep coming. And so the other thing is, I would like to tell you कि आपको सर्जरी वाले दिन किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है. So there is another question that somebody is asking that can you address the shock loss of excessive hair after surgery and how can it be resolved? So like any hair loss, it is due to deficiencies, nutritional deficiencies. तो वैसे भी अगर हमें जैसे पोस्ट कोविड हमने देखा बहुत लोगों को हेयर लॉस हो रहा है, एंड वैसे ही सर्जरी इज़ अ स्टेट ऑफ स्ट्रेस. आपकी बॉडी में बहुत टू रिकवर इट रिक्वायर्स मोर न्यूट्रिशन. हम हाई प्रोटीन डाइट में देते हैं और डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ प्रोसीजर, इट्स अ बिग प्रोसीजर. अगर आपको शॉक लॉस है तो देयर आर सप्लीमेंट्स विच आर एडवाइज्ड on a regular basis for a month. It is
एन अग्लोमरेशन ऑफ सप्लीमेंट्स, मतलब बहुत सारे सप्लीमेंट्स आपको प्रिस्क्राइब किए जाते हैं जो आपके रिकवरी फेज में हेल्प करते हैं फॉर हेयर लॉस. उसके लिए आप डॉक्टर शिल्पी को कंसल्ट कर सकते हैं. दिस इज लाइक आउट ऑफ माई फील्ड ऑफ प्रैक्टिस. एनेस्थीसिया से इसका रिलेशन नहीं है. सो इन द नेक्स्ट लाइव व्हेन डॉक्टर शिल्पी इज देयर, आई थिंक शी विल बी एबल टू आंसर दिस इन मच मोर डिटेल. या सो व्हाट आई हैड स्टार्टेड वाज दैट आपको किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है जब आप सर्जरी कराने के लिए जाते हैं, या व्हाट टू टेक इन कंसिडरेशन ऑन द डे ऑफ सर्जरी. सो जब आपकी सर्जरी है, आई वुड से फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप कोशिश करिए कि आप टाइम पे पहुँचें, बिकॉज एक शेड्यूल होता है ओटी का, दैट किस तरीके से हमें सर्जरीज आर प्लान. जब पहली सर्जरी डिले होती है तो डॉक्टर्स भी रश में होते हैं, स्टाफ भी रश में होता है और पेशेंट भी रश में होता है. एंड आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया टू बी इन अ रश. सेकेंडली, फॉलो सॉर्ट ऑफ गेट ऑल योर इन्वेस्टिगेशंस व्हिच हैव बीन डन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कंसल्टेशन. आपकी जो भी रिपोर्ट्स हैं वो सब आप साथ लेके आएँ. तीसरा, आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं वो केयरफुली सर्जरी से पहले सुने. कुछ समझ ना आए तो आप कंफर्म करें और उनको फॉलो करें. जैसे हम डिपेंडिंग ऑन द सर्जिकल प्रोसीजर, अगर लोकल एनेस्थीसिया में है, जनरल एनेस्थीसिया में है, उसके हिसाब से हम फास्टिंग गाइडलाइंस बताते हैं कि आपको 6 घंटे पहले कुछ नहीं खाना, और उस कुछ नहीं खाना में पानी भी इंक्लूडेड होता है कि यू हैव टू बी कम्प्लीटली फास्टिंग. कई बार हम पेशेंट्स को अलाउ करते हैं कि वो 2 आवर्स पहले क्लियर लिक्विड्स ले सकते हैं, और यही चीज़ें आपको समझनी हैं जब आप सर्जरी से पहले अपना लास्ट विजिट लें. जैसे कि थायराइड, किसी पेशेंट ने कहा कि उनको थायराइड की बीमारी है. अगर आपको थायराइड की बीमारी है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आप हाइपोथायरॉइड हैं तो आपका डॉक्टर आपको बताएगा कि सर्जरी वाले दिन भी आपको दवाई लेनी है. ऐसे ही कुछ लोग डायबिटिक होते हैं तो उनको सुबह दवाई लेनी है कि नहीं, वो दवाइयाँ देख के हम लोग डिसाइड करते हैं, और आपके शुगर्स किस लेवल के हैं, कई बार इंसुलिन पे. सो ऑल दीज थिंग्स दैट आर टोल्ड टू यू, यू हैव टू फॉलो देम टिल टू द टी. Also, you should not carry a lot of valuables to the your hospital, because surgery से पहले आपको सारी jewelry वगैरह remove करनी होती है. So it's a good idea to carry minimal valuables to the OT. Also carry your identification cards like Aadhaar card or whatever which are required during registration in your hospital. Apart from that, I would say when you have planned for the surgery, when you are ready for the surgery, on the day of surgery, stay positive, think of good outcomes, and everything will surely fall in place as far as the elective procedure is concerned. Anesthesia से डर जहाँ तक की बात आती है, it's a very normal thing. There is a psychiatric study जिसने बताया है कि 30% of the patients are more scared of anesthesia than the surgery. बट ये fear of unknown है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है एनेस्थीसिया के बारे में. एनेस्थीसिया कैसे दिया जाता है, एनेस्थीसिया किस टाइप का होता है. यू शुड ऑलवेज सॉर्ट ऑफ टॉक टू योर डॉक्टर्स एंड सॉर्ट ऑफ फाइंड आउट अबाउट इट बिफोर हैंड. वो आपकी एंजाइटी को ज़रूर रिलीव करेगा. एंड आई एम श्योर वेन एवर योर प्लान फॉर सर्जरी, you will look forward to sort of meeting your anesthesiologist also apart from your surgeon. So many patients, once they are, it's really funny actually that when we start the procedure and Dr. Icha gets the drugs administered, and they have that the feeling of high. So a lot of patients, when they wake up, they actually sort of tell us that if it was this, we would have gotten our surgery done long before, So don't be scared, Like I said, it's usually the fear of unknown. आपको जिस चीज़ के बारे में पता नहीं होता, आपको उस चीज़ से डर लगता है. पर जब आप बात करेंगे, आपको एक नॉलेज होगी कि एनेस्थीसिया क्या है, इतना सेफ है इस एज में, आई एम श्योर यू वोंट थिंक ट्वाइस अबाउट गोइंग अहेड विद द सर्जरी. So I think most of the topics must have been covered. Yes, I hope so. Do we show them the anesthesia? So a little bit. So the whole reason for doing it in the OT was that I can show you a little bit about. Question has been answered. So a little bit about our OT and what it feels like, because बहुत सारे
पेशेंट्स जब आते हैं तो वो बोलते हैं कि अंदर से ओटी कैसा होता है, हमें ओटी में जाने की एंजाइटी है. सो आई डोंट नो इफ यू कैन सी, दिस इज द bed on which a patient would lie down. Yes, yes. Yeah. So this is the bed on which the patient lies down, and this is the anesthesia machine with the help of which we give general anesthesia. ये एक मॉनिटर है. इस मॉनिटर पे आपके सारे वाइटल्स, जिसे कहते हैं ब्लड प्रेशर, पल्स, बीपी, थ्रू आउट द सर्जरी हम लोग देखते रहते हैं. एंड आपका एनेस्थेटिस्ट थ्रू आउट द सर्जरी आपके साइड में ही रहता है while the surgeon concentrates on performing the surgery. ये एक वेंटिलेटर है. जिनको हम जनरल एनेस्थीसिया देते हैं उनको हम ये मास्क से, पेशेंट के मास्क से मुंह पे गैसेस देते हैं. कई बार सिर्फ इंजेक्शन से दवा देते हैं और ये आपको नॉर्मली ब्रीथ करना है और आपको नींद आ जाती है. वंस यू आर अंडर एनेस्थीसिया तो हम अगर डीप जनरल एनेस्थीसिया है तो आपके मुंह में एक किस्म की ट्यूब डालते हैं अगर ज़रूरी हो, जो हम प्लास्टिक सर्जरी के केसेस में बहुत कम यूज़ कर रहे हैं, सिडेशन में करते हैं. या फिर ऐसा ही एक LMA होता है. ये डालने का आपको कुछ पता नहीं चलता. ये सब तभी जाना चाहता है जब आप नींद में होते हैं एंड यू डोंट हैव एनी रिकलेक्शन ऑफ एनी ऑफ दीज थिंग्स. और आपके उठने से पहले, आपके होश में आने से पहले ये चीज़ें आपके मुंह से बाहर होती हैं. एंड फॉर यू, लाइक आई सेड, इट इज़ लॉस्ट टाइम. आपको कुछ याद नहीं रहता, आपको बस यही याद रहता है मैं OT के अंदर आया या आई, और रिकवरी रूम में जनरली यू वेक अप. एंड इसके अलावा दर्द, आई वुड से यू शुड कम विद एन एक्सपेक्टेशन ऑफ, अगर आप आएंगे विद नो पेन एट ऑल, दैट इज अनरियलिस्टिक. बट in this age of medicine, they are amazing painkillers. You may have a little bit of discomfort on the first day, but intolerable pain और severe pain ऐसा आज की जनरेशन में कभी रेयरली ही होगा इलेक्टिव प्रोसीजर्स में. बाय एंड लार्ज मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आर कंफर्टेबल इन सर्फेस सर्जरी. दे आर मूविंग अबाउट ऑन द सेम डे एंड दे यूजुअली रिटर्न टू देयर नॉर्मल एक्टिविटीज very very soon, maybe in a couple of days also, but it depends on the kind of surgery you are undergoing. Yeah, and you know, for most of our surgeries actually at our center we are giving IV sedation with local anesthesia. बिकॉज हमारी जो सर्जरीज होती हैं उसमें कैसे होता है कि जैसे लाइपोसक्शन अगर हो रहा है तो हम ऑलरेडी फ्लूइड तो हमें इन्फिल्ट्रेट करना ही है, उसमें हम लोकल एनेस्थेटिक डालते ही हैं, तो हमारी एनेस्थीसिया की रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाती है. एंड IV सेडेशन विद लोकल एनेस्थीसिया में क्या है कि वो ट्यूब आपके थ्रोट में नहीं डलती अनटिल एंड अनलेस रिक्वायर्ड. बट येस, वी आर इक्विप्ड कि अगर मान लीजिए कि किसी पेशेंट को दिक्कत हो रही है सांस लेने में IV सेडेशन में, तो देन वी गो अहेड एंड पुट द ट्यूब. बट अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग इज डन अंडर कंट्रोल. And you know, there are qualified people who look after the anesthesia and the pain part. The surgeon concentrates on the surgery. मतलब अगर सर्जन को ऐसे टेंशन होती रहे कि भाई मेरे पेशेंट को पेन तो नहीं हो रहा, पता नहीं पेशेंट कंफर्टेबल है कि नहीं है, पेशेंट मूव तो नहीं करेगा, तो यू नो इन दैट केस वी कांट परफॉर्म द सर्जरी विद पीस ऑफ माइंड. So that is why, you know, the anesthesiologist in any surgery presently, you know, they are such an integral part, and without them, I mean, I can't think of doing a surgery without my anesthesiologist. I would, most of the time, you know, when you know it's multiple part surgery, अगर छोटी छोटी multiple part की surgery है, जैसे fat grafting for example, फेस का मान लीजिए चीक का फैट ग्राफ्टिंग है. अभी जैसे मैं जब ब्रेक लेके गई थी तो there's a patient, she has a scar on the chest from a heart surgery. She had couple of heart surgeries when she was a child, और वहाँ पे उनका स्कार है, स्कार वेल सेटल्ड है, लेकिन वो स्कार जो है वो कलर में थोड़ा लाइट दिख रहा है, तो वाइट पैच जैसे दिख रहा है. तो मैंने उनको ऑप्शंस बताए ग्राफ्टिंग के, स्किन ग्राफ्टिंग के ऑप्शंस बताए कलर चेंज करने के लिए. एंड आई सेड दैट इफ यू फील लाइक यू कैन गेट इट अंडर लोकल एनेस्थीसिया, तो हम यहाँ पे नम करने का इंजेक्शन देंगे, जहाँ से ग्राफ्ट लेंगे थाई पे वहाँ पे नम करने का इंजेक्शन देंगे. सो इमीडिएट क्वेश्चन वॉज कि डॉक्टर क्या हम बेहोश करके नहीं कर सकते. सो यू सी वॉट, इवन फॉर स्मॉल थिंग्स people want comfort, and as a surgeon I would be very happy if my patient says that I want to do it under IV sedation or under anesthesia. I am the happiest person, because local anesthesia में क्या होता है, मेरा भी बहुत सारा ध्यान रहता है कि पेशेंट को पेन तो नहीं हो रहा, या जैसे छोटी छोटी सर्जरी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोल रिमूवल है, स्कार रिविजन है, ये सब तो हम लोकल में ही करते हैं, अपर ब्लेफोप्लास्टी हम लोकल में करते हैं. बट अगेन जहाँ पे ज़रूरी है मुझे लगता है कि वी जस्ट गो अहेड एंड
take the advantage of the advance in technology that we have. Absolutely. I think being pain free is like a basic human right. जहाँ पे आपको पेन नहीं होना चाहिए वहाँ पे पेन क्यों सहना है अगर वो सेफ है तो. So and also I'll tell you there is a thing like post traumatic stress disorder. अगर आपका first experience बहुत painful है या सर्जरी आप लोकल में सिर्फ इस डर से करा रहे हैं कि मुझे कोई एनेस्थीसिया रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, तो आप उसके बाद जब भी किसी प्रोसीजर के लिए जाएंगे you will be extremely stressed out. You will carry that memory with you, and you will be probably you will delay getting that procedure, and it may land up in some kind of complications. So where and when, what is needed and what is necessary and what is safe, you can easily opt for anesthesia after meeting your, unless your anesthesiologist tells you there is reason to worry, which will be extremely rare. अगर ऐसा कुछ है they will stratify you according to a risk profile and then they will go ahead with the procedure. और वो भी अगर well equipped center है तो कोई डरने की बात नहीं होती है. Yeah, and we have a very well equipped center. Yes, and I can somebody vouch asked for it. So we've done what, like I think more than 500 surgeries together, Yes, yes. maybe more. Yes. And in each surgery there are so many multiple things going on. So let's say if I'm doing a breast reduction, maybe that patient wants an arm liposuction also. कभी abdomen lipo है तो उसके साथ हम thighs lipo भी कर रहे होते हैं. So obviously many in one procedure तो बहुत बार होता है हमारा. So obviously many surgeries we've had the chance of Dr. Richa's company, and she's been an amazing anesthesiologist, amazing support, and all my staff, all my patients just love her. That's very kind. I think it's totally about teamwork. वैसे, so nobody can function without the other. If your surgeon trusts you and you have an amazing team, then work becomes easy, and it's excellent for a patient if you have a good cohesive team, which understands each other and works in synchrony. So it is all for the patient benefit, I feel. And I have personally got a lot of procedures done with their aesthetics also, so I vouch for Dr. Shilpi. And okay, somebody is asking hair transplant भी करते हो आप? हाँ जी, हम बिल्कुल करते हैं hair transplant. And I think it's the right time to address the concern about hair transplant being done at places which are not authorized to do procedures. मतलब see, hair transplant as such local anesthesia में होता है, हम भी local anesthesia में करते हैं, लेकिन उसमें सेफ्टी चेकलिस्ट इतनी ज़रूरी है कि आप अपना ट्रांसप्लांट कहाँ करा रहे हो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि प्रोसीजर देखिए ये परमानेंट प्रोसीजर है, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बार कराना पड़ेगा. मैक्सिमम अगर बहुत ज़्यादा बॉल्ड एरिया है तो हम 2 बार करते हैं, मे बी थोड़ा बहुत करेक्शंस आपको, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ अ सिंगल टाइम प्रोसीजर. Choose a center which is equipped. Choose a center which puts your safety at priority. Of course, रिजल्ट तो आना ही है, रिजल्ट तो है ही, प्रायोरिटी आप करा ही उसके लिए रहे हो, लेकिन उसके पहले क्या जरूरी है? उसके पहले जरूरी है डॉक्टर की क्वालिफिकेशन. उसके पहले जरूरी है कि आप जो सेंटर पे करा रहे हो वो कितना इक्विप्ड है. अगर इमरजेंसी हुई तो क्या वो सेंटर इक्विप्ड है आपके कॉम्प्लिकेशन को हैंडल करने के लिए, या फिर देयर सो मेनी थिंग्स दैट people ignore when they are wanting to make a decision, and sometimes they become the most important criteria of and I think I would go to a center only where my safety is put at priority. I think nobody wants to gamble with their safety, and that is very important. और हम hair transplant करते हैं, हमारी अलग OT है hair transplant की. We are fully equipped. See, we have an anesthesia machine, we have all the medicines, everything, and we have the experts to do the if at all there's an emergency, then we are very well equipped to handle it. That's very important. तो आप अगर हेयर ट्रांसप्लांट जैसे ये बहुत कॉमन प्रोसीजर है, आप कुछ पेशेंट्स मुझसे कहते हैं कि मैम कॉस्ट में डिफरेंस है और हमने ये क्लिनिक में पता किया और आपके यहाँ पता किया, तो बट यू टू अंडरस्टैंड व्हाट गोज इनटू दैट कॉस्ट डिफरेंस. What goes into it is a very well equipped center with a qualified doctor, with trained technicians and follow ups. बाद का safety, अगर मान लीजिए आपको इन्फेक्शन होता है या उस समय कोई ड्रग रिएक्शन होता है तो क्या करेंगे. So all these are important part of of the procedure, and you cannot ignore it, because आप एक cosmetic surgery के लिए you don't want to put your life at risk, or in fact I think for any surgery. Why? And why do you, if
especially for elective procedures, why would you want to land up in any kind of complications? आपको हर OT कैसे clean होता है, कैसे fumigate होता है, उसकी क्या cost होती है, आपको कभी पता नहीं चलेगा, you know, as a patient. But a center which does it properly decreases your chances of infection so much, you know. It's a greater outcome, and I think a procedure that you get done once in your life, these things should be considered. Yeah, and you know we are so very. For example, like you see, we are here in the OT. We are without masks right now. We are speaking. So after this, my entire OT will get fumigated. Absolutely. You know, it's not that इसके पहले भी clean हुई है OT और उसके पहले भी अभी बिल्कुल clean है हमारी OT, लेकिन क्योंकि हम दोनों यहाँ पे अभी live कर रहे हैं, we wanted to show you the anesthesia machine and all. तो अभी हम बिना मास्क के हैं and we are speaking. After this, the entire OT is going to get fumigated so that we don't land up with an infection. And we are very proud to say that we have negligible, minimal cases of infection. मतलब बहुत ही I don't remember from the OT somebody has gotten infected until now, and touch wood to that. And amazing staff that I have, you know, they maintain such strict control, cleaning, everything, you know. So I'll just give you a little view of what the OT looks like. Yes. So you see that's my iPad on the patient trolley. Yeah, thank you. So that's the patient, the operating table. There are some drugs kept there. There's the machine. There's my liposuction machine, my ultrasonic lipo. That's the crash cart. That's very important. There all the emergency drugs are kept, and then you can see here the anesthesia machine, the monitor, and the pipeline is all central. So we don't have any cylinders over here. And of course, for backup, the anesthesia machine does have, you know, you can, yeah. So here you see there's a backup, you know, all these oxygen, nitrous, all these are backup cylinders, although we hardly need them. It's all central supply. Then this is the powerhouse. Yes, our infusion pumps, when they are needed. So everything is available readily for each case that we go forward. So we don't leave it to chance. Whenever a patient comes, all the emergency drugs and all the area of drugs, we treat each patient like it's the most important thing for the day, you know. Yeah, so absolutely. Every patient, whether for a small procedure or a big procedure, until and unless we finish the task, we don't rest. So it's amazing, you know, in any OT and any surgery, wherever you get operated, the teamwork is required. And I'm sure there will be many places, and this is also one such place where the whole team is working for patient safety. And And I think results. this fascinates everybody. Yeah. That's the OT light. So yeah, we have two domes over here. There's the HEPA filter up. You know, you can see this, the AC. So all this is all filtered so that the air doesn't come directly. There's so many things. You know, I can't even begin to tell you how many things we have in the OT and that we have to take care of. But I hope that this session. So I hope that this session was useful to everybody who's thinking of getting a procedure done, but they're thinking that, you know, fear of anesthesia is there, and we've had quite a few requests, and thank you so much. Oh, it's my pleasure, and I hope I could allay the anxiety a bit at least, and rest when you meet us and when you come for surgeries. So I hope everybody who's planning can go ahead with this tiny attempt. You know, it allays your fear and you can take the next step towards any surgery that you want to get done. Thank you so much. Thank you, and thank you for joining us, everyone.